بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفہام کے عنوان سے ہم نے مختلف اہل علم اہل دانش سے استفادے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کی نشست میں نے خاص کی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں اب تک جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کئی پہلوؤں سے قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو بس دور سے اور ایک تارانہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر آج زحمت دی ہے ہمارے بہت ہی محترم دوست عامر رانا صاحب کو، جو اس طرح کے امور کے متخصص ہیں اور گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو عامر رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جی بہت شکریہ احمد بھائی۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سفر میں ہوتے ہوئے کچھ وقت نکالا اور آپ سے ہم سیکھ سکیں گے۔ موضوع تو میں نے جیسے عرض کیا افغانستان کی صورتحال ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو مطالعات ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ علم ہے، ایک شعبہ ہے سیکیورٹی اسٹڈیز کا یا اسٹریٹجک اسٹڈیز کا، اور آپ اس سے وابستہ ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے، اس میں کن پہلوؤں سے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور آپ نے کب سے اس کو اختیار کیا اور اس میں آپ کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عمار بھائی، اور بہت بہت مبارکباد۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا بات چیت کا، اور یہ بھی ایک مکالمے کی بڑی اہم قسم ہے۔ اور جہاں تک سیکیورٹی اسٹڈیز کا تعلق ہے، یہ کوئی بہت پرانا ڈسپلن نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ایوالو ہونا شروع ہوا، تو بنیادی طور کے اوپر تو اس میں سیکیورٹی، خواہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کے سے ریلیٹڈ معاملات ہوں یا ریجنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، تو اس کو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے کئی خاصا وسیع یہ اب ڈسپلن بن گیا ہے۔ اس کے اندر ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، ایکسٹریمزم، اور یہ ان ناموں سے تو ہم بہت واقف ہیں، ریڈیکلزم، اور پھر کہ پولیٹیکل جو ٹینڈنسیز ہیں، پولیٹیکل ریڈیکلزم آج کل بہت ہی زیادہ اس کے ڈومین کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہیں۔ پھر پیس بلڈنگ کے پروسیسز ہیں۔ تو لیکن اگر اس کو ایک جملے میں سم اپ کیا جائے تو یہ بنیادی طور کے اوپر قوموں کی اور معاشروں کی تھریٹ پرسیپشن سے متعلق علم ہے، اور پرسیپشن کے ساتھ کہ ان سے پھر خطرہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ کس لیول کا ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، تو یہ اس سے ریلیٹڈ علم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور آپ تو کافی عرصے سے اس سے وابستہ ہیں، بلکہ آپ نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ آپ نے ایک وقت میں جب مختلف آپشن سے تو آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں رہ کے کام کروں گا اور اس فیلڈ میں کام کروں گا۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں۔ دیکھیے، ہاں یہ تو اب جو کہ بنیادی طور پہ تو میں صحافی تھا اور صحافت سے آغاز کیا، اور صحافت بھی تھی لیٹ 90s کی۔ آپ کے علم کے اندر ہے اس وقت تو پاکستان میں ایک پوری فضا تھی، جہادی فضا تھی، افغانستان میں طالبان تھے۔ تو یہ کوئی خاص ڈسپلن نہیں تھا جیسے جسے کہتے ہیں بیٹ جرنلزم کے اندر۔ تو اس کی طرف جو ہے کچھ ہمارے سینئر جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا اس کے اوپر کریں، اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بیٹ کے طور پہ اختیار کیا، تو پھر مذہبی جماعتوں کا بھی ڈومین جو ہے وہ میرے ذمہ داری لگ گئی۔ تو وہاں جب 9/11 ہوا تو اس وقت میں بے روزگار تھا بلکہ اس وقت ملتان میں ہمارے ایک دوست کا پرائیویٹ کالج ہے، تو وہاں پہ ان دنوں میں کچھ کوشش کر رہا تھا کہ پڑھانے کی طرف جو ہے وہ سوئچ کر لیا جائے۔ تو جب یہ ہوا تو ایک دو ماہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ آپ اس موضوعات کے اوپر لکھتے تھے اور آپ ایک کتاب پہ بھی کام کر رہے تھے۔ یہ آئیڈیا خاصا پرانا تھا کہ پاکستان میں یہ فینومنن کیا ہے جہادی تنظیموں کا۔ تو اس وقت پھر مشعل ایک ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے تو اس کو ہم پرنٹ کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ کام کر رہا تھا تو وہ ایک بہت ابتدائی نوعیت کا کام تھا۔ بنیادی طور کے اوپر ایک پورا انفارمیشن پیکج تھا کہ پاکستان میں ایوالو کیسے ہوا ہے، کیا
कितनी तंजीमें हैं, करती क्या हैं, कहाँ पे वो उनका ज़्यादा फोकस है, ख़ास तौर पे वो फिर सेक्टेरियन तंजीमें हैं, उनका आगाज़ कैसे हुआ, कैसे, इस किस्म की इब्तदाई मालूमात थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब मौका मिला मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्ट करने का, बात करने का, यूनिवर्सिटीज जाने का, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो फिर अंदाजा हुआ कि ये कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तवज्जो चाहिए। ये सिर्फ चंद गिरोहों का मामला नहीं है, और ये कोई टेररिज्म से रिलेटेड इशू नहीं है, बल्कि ये आपकी सियासत से, समाज के साथ जुड़े हुए, आपकी सिक्योरिटी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं। तो फिर उस वक्त हम्म। ऑप्शंस तो होती हैं शुरू में, कुछ स्कॉलरशिप्स की ऑफर थी इसी में पीएचडी के लिए। वो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अ, अगर इसको ही सब्जेक्ट के पर काम करना है तो पाकिस्तान में रह के ही हो सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर हो। क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उस वक्त, जब भी आपको होता है कि नया कोई भी मसला उठता है, तो उसके बेतहाशा बेशुमार एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाते हैं। असल में वो होते कमेंटेटर हैं, और वो आसान होता है कमेंट करना। तो वो जब बाहर गए तो बहुत सारे कमेंटेटर मिलते थे, पाकिस्तान, साउथ एशिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल के वो कमेंट करते थे, जी। और वो बतौर एक्सपर्ट के तौर पे बुलाए जाते थे। तो वो, मैं नहीं, उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसलिए पाकिस्तान का इंतखाब किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कमेंटेटर ही रहे, एक्सपर्ट नहीं बन सके। अच्छा, नहीं ये बड़ा दिलचस्प आपका फील्ड है। और मैं मुझे ख्याल हो रहा है कि एक दो चीज़ें और समझनी चाहिए, क्योंकि इस मौजू पे बात कर रहे हैं तो आपसे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। एक तो ये बताएं कि आपने कहा कि ये एक तरह से सहाफत के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके तकाजे और इसमें जो रिगर चाहिए वो और तरह की है। तो इसमें आप जो आपके पास वसाइल होते हैं, इल्मी वसाइल, तज्जिए के वसाइल, उनके उनमें और सहाफत में जो वसाइल इस्तेमाल होते हैं किस नौइयत का फ़र्क है? इसमें आपको कुछ हाँ, इजाफी बहुत ज्यादा, चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। बहुत ज्यादा फर्क है। सहाफत में तो जाहिर है कि आप बुनियादी तौर पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी वाकया है, और एक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाज दफा वो तज्जिए के लिए काफी नहीं होता। जाहिर है कि जब तक आपके पास डाटा ना हो, मालूमात ना हो, तो आप अच्छा तज्जिया नहीं कर सकते। आपका तज्जिया नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तो फिर आप उसमें से आप सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं, क्या प्रोजेक्शंस क्या कर सकते हैं उसमें से। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें पाकिस्तान के अंदर ये इब्तिदा में ये गैप रहा, इंफॉर्मेशन का खासा वैक्यूम था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तंजीमों का मसला ही नहीं है यहाँ पे, हर सब्जेक्ट जो इससे रिलेटेड है, कि रियासत की पॉलिसी क्या है, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस कैसे इवॉल्व हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बन गया है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, इंटरनल कौन से हैं, कहाँ पे जाके कन्वर्ज होते हैं, कहाँ पे ये आपस में जाके इनमें टकराव की कैफियत पैदा होती है, और उसका फिर सोसाइटी के ऊपर, हमारे रवैयों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर किस तरह से इम्पेक्ट होता है। तो जाहिर है कि पूरा एक वो तो एकेडमिक डिसिप्लिन है। उसके लिए आपको रिसर्च भी चाहिए, डाटा कलेक्शन भी है, ताकि आप अपने एनालिसिस को बेहतर कर सकें। तो शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो बुनियादी चैलेंज यही था। शुरू के जो 3-4 साल थे, हमें ये समझने में वक्त लगा कि ये पूरा मामला है क्या। यहाँ पे सिर्फ मजहबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं, यहाँ पे बेतहाशा किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं समाजी सतह के ऊपर। आपके तो इल्म में है ये तो बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर जितने शुरू के कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, उनकी नेचर तो लिसानी या एथनिक और लिंग्विस्टिक ज्यादा रही है, और उसी की वजह जी। से जो है मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, उसके बैकग्राउंड के अंदर ये था पूरा एक जी। सिलसिला। तो ये जाहिर है कि इसको फिर मुताला करना, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव कैसे मुख्तलिफ है भी कि नहीं है, कौन सी कंडीशन एक साथ चल रही है, तो ये सारी चीजें फिर ग्रेजुअली जो है वो फिर हमें, फिर इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज है वो सारी वही आप भी पढ़ते हैं, आप पढ़ाते भी होंगे यकीनन, वही मेथोडोलॉजीज हैं, रिसर्च टूल्स वही हैं, वही जी। थ्योरीज हैं
वही हमारी फील्ड में अप्लाई होती हैं, वही सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में। अगर मैं कहूँ कि ये एंथ्रोपोलॉजी का ही एक डिसिप्लिन है सिक्योरिटी स्टडीज, और ये जाके कन्वर्ज होता है स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक खास डोमेन है जिसमें वॉर स्टडीज है, फिर जी। एक पूरा जियो पॉलिटिक्स है इकोनॉमी के साथ, ये बहरहाल उसके साथ जाके टच करता है, कन्वर्ज होता है। लेकिन एक डोमेन फिर भी अलग रहती है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करती है जी। सिक्योरिटी स्टडीज। हाँ बिल्कुल, हाँ ये जो वजाहत है ये काफ़ी मदद देती है कि इसमें और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में कहाँ पे आप एक तरह से फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आप कह रहे हैं कि जब आपने इसको ज्वाइन किया इस फील्ड को, तो उस वक्त ये इब्तदाई मराहल में था और आपको ज़ाहिर है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी, तो आपने, तो मुझे इल्म है कि आप एक इदारा भी बनाया हुआ है और डाटा कलेक्शन के और इस तरह के जो दूसरे टूल्स हैं वो आपने डेवलप भी किए हुए हैं। तो आ, क्या कोई आदमी जो जिसको इस तरह के किसी इदारे के साथ वाबस्तगी ना हो, क्या उसके लिए ये मुमकिन है या आसान है कि वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सके, या आ, इस तरह के एक वसाइल और सपोर्ट होनी चाहिए तभी कोई? हम्म। ये खासा मुश्किल है। पहले तो इसमें इरादा जरूरी है जो है ना, कि हम्म। आप इरादा करेंगे तो फिर ही मतलब आप इसमें रेडीमेड चीजें इस तरह नहीं है। इस तरह से नहीं है। हम्म। अभी तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज ने डिसिप्लिन बनाए हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, और दुनिया में जब रुझान चेंज होते हैं तो ठीक। फिर हमारे यहाँ भी होते हैं। तो एक किस्म का वो फिर अभी डाटा बेसिस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज भी बना रही है। लाहौर में एक इदारा है, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ काम किया है। हम्म। तो आगे लेकिन इब्तदा में खासी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो आपका खास तौर पे ये सब्जेक्ट है, ये बाकायदा हुकूमत के, रियासत के सिक्योरिटी इदारों से फिर जाके रिलेटेड होता है। तो आपने कन्फ्रंटेशन के साथ कोई भी, और जाहिर है एकेडमिक कोई भी डिसिप्लिन में कन्फ्रंटेशन नहीं होती, उसमें आपकी कोलैबोरेशन होती है। और कोलैबोरेशन के अंदर जितना डाटा आपको जहां से भी मिलता है उसकी बुनियाद के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा आपका एनालिसिस हो, तो उसमें फिर आपको तो कन्फ्रंटेशनल मोड, एक्टिविज्म को बिल्कुल एक साइड पे रख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और आपके वो कोलैबोरेशन कोई आसान नहीं होती। और जाहिर है कि पाकिस्तान में इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर जब किसी सरकारी इदारे की सरपरस्ती ना हो, तो शुरू में आपको बहुत ही शक्की निगाह से देखते हैं कि आप कर क्यों रहे हैं। आप बैरूनी कुव्वतों के एजेंट हैं, क्यों ही आप ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर आप क्यों ही काम कर रहे हैं। तो ये एक एतमाद जो है वो पैदा करने में टाइम लगता है। उतना ही टाइम हमें लगा जितना नॉर्मल डिस्कोर्स में लगता है। फिर हमने कोशिश की है कि जितने भी फरीक हो सकते हैं हमारी डोमेन के अंदर, जिनको को हमें स्टडी करना चाहिए, हमने सबके साथ हमेशा राब्ता किया। जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये जिनसे बात नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एक्टिविज्म वाले दोस्त हैं, हमने उनके साथ भी हमेशा बात भी की और समझने की कोशिश की कि उनका नुक्ता नजर है क्या, वो अ, बुनियाद कहाँ पे है। और वो रेजोल्यूशन में मदद देती है जाहिर है चीजों को, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। खासा सब्र आजमा काम है। और लेकिन जब आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए भी आसानी होती है, और फिर नए आने वालों के लिए भी आसानी होती है। तो अभी तो ये है कि हमारा छोटा सा इदारा अभी भी छोटा ही है, लेकिन हमें जाहिर है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी एकेडमीज हैं, तो वो अब हमें इंगेज करते हैं। एक उनके नेटवर्क ट्रेनिंग सेशंस नेटवर्क हैं बन गया उनके। है, एक राब्ते कायम बन गए जी हैं। बिल्कुल। सही। बिल्कुल, और एतमाद सबसे ज्यादा जी। जरूरी है जी। कि जी। सबका, क्योंकि हम कोई एक्टिविज्म नहीं कर रहे, और ना ये खास लॉबी है, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। हाँ, मेरी जिंदगी का ताकि एक जो जिन पार्ट हो लोगों ने सकता है कि कुछ मैं करना है, एक्टिविज्म में हूँ। हाँ, ताकि जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है या जो, तो उनको आप एक तरह से सपोर्ट मुहैया जी कर। बिल्कुल। एक छोटा सा हाँ, सवाल। सोसाइटी को भी जरूरत होती है। सोसाइटी को, हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सोसाइटी। हाँ। बस एक सवाल इससे मुतालिक और पूछ के, तो फिर हम जो हमारा आज का मौजू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये कि जिन मौजूआत पे आप बतौर एक सिक्योरिटी एनालिस्ट अपने इन सारे वसाइल के साथ देखते हैं, राय कायम करते हैं, तो जाहिर है उन्हीं मौजूआत पर बाकी सारे लोग भी कर रहे होते हैं।
صحافت میں بالकुल। کالم لکھ رہا ہوگا، ہمارے جیسے لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے کوئی تبصرے کر رہے ہوں گے، تجزیے کر رہے हम्म। ہوں، تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی پرسپیکٹو سے، کسی نہ کسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا آپ یعنی کیسے محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کا تجزیہ ہوتا ہے اور یہ جو دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا ایک دوسرے کو مدد دیتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ہی ایک لوگ جو ہیں وہ غیر حقیقی سی کوئی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں یہ بالکل نہیں، وہ بڑا اچھا. امپورٹنٹ ہے. جو اچھا. بھی نقطۂ نظر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ، خواہ وہ صحافی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی سماجی علوم کے ماہر ہیں، وہ کس پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنے، اس سے ہی تو مدد ملتی ہے وہ تمام فنامنن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ہوں. ہوں. میرے لیے تو جو بھی اس کے اوپر کوئی ایک ٹویٹ بھی کرتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ٹویٹ کر رہا ہے، وہ ایک رویے کی، اگر وہ زیادہ ٹویٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ کافی زیادہ لوگ ہاں نہیں ٹھیک ہے. متفق ہیں، تو کیوں ہے؟ ہاں، اینتھروپالوجی، یہ تو اینتھروپالوجی میں بالکل تو پھر آپ یہی اسٹڈی کر رہے ہیں لوگ کیسے. بالکل. ہاں، بالکل ٹھیک. تو اس میں کوئی مخاصمت نہیں ہے کسی کے ساتھ، یہ بات کیوں ہوں. کر رہے ہیں ہوں. ہوں. اور ان کو یہ کہنا چاہیے. تو میرا اس حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی نقطۂ نظر نہیں ہے. ہاں، میرے نقطۂ نظر بہت سارے اور موضوعات کے اوپر پوزیشن ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ پوزیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک میرے اپنے بائسز کے اوپر ہے. میں بہت امکان ہے کہ وہ بہت کم معلومات کے اوپر ہے، چونکہ ہم نے سماج کے اندر انٹریکٹ کرنا ہے، ہمارے دوست ہیں، تو انہی موضوعات پہ بات کرنی ہے. تو ہمارا جو تعلق ہے بنیادی طور کے اوپر موقف کی یکسانیت سے بنتا ہے. تو موقف کے اندر یکسانیت نہ ہو تو ہماری دوستیاں بھی نہیں بنتی. تو اس لیے ہمیں بھی کچھ ایشوز کے اوپر پوزیشن لینی پڑتی ہیں، لیکن جو اپنا سبجیکٹ ہے جب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو آبجیکٹیولی جو ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس کے فریم ورک میں اس کی میتھڈولوجی کو پراپرلی فالو کیا جائے.